welcome to Mentoring the Mentors, an institute that accelerates your learning curve. My dear educators, this is Meenakshi Narula, and as we have been talking about education policy, so in continuation with that, today we're going to talk about problems in implementation of education policy. This question can be asked either as a short note or maybe as a long answer type question in your exam. So let us prepare for it. Problems in implementation of education policy. If it comes under long answer type question, you have to begin with what is education policy all about, what are the characteristics of education policy, and then you can begin with problems in implementation of education policy. Otherwise, in short notes, directly after just giving a brief definition of education policy, just begin with these kinds of points. Either in your exam, you can start by making this mind map and then elaborate these points. So if I talk about different points, and we will discuss even all the points in detail too. Insufficient funding is the problem in the implementation of education policy. Infrastructure and resource constraints are there, right? And teacher quality and training, that is another problem. Governance and accountability. Who takes accountability? How the same can be governed? And socio-economic disparities are there based on different cultural and linguistic diversity. Also, curriculum relevance and alignment is to be taken care of, so that also becomes a major problem, a challenge. Monitoring and evaluation, stakeholder engagement, and political instability. We will be talking about these 10 points in detail. So here you go, my dear educators. So these are the points that we will be discussing in detail. So the first point is insufficient funding. Inadequate financial resources allocated to education can hinder policy implementation. जब फाइनेंशियल सपोर्ट ही प्रॉपर नहीं होगी तो हम एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कैसे कर पाएंगे. एंड लैक ऑफ फंड्स कैन रिजल्ट इन, अगर फंड्स नहीं है तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं होगा, क्वालिफाइड टीचर्स नहीं मिल पाएंगे, शॉर्टेज ऑफ टीचर्स होगा. एलटीएम लर्निंग टीचिंग मटेरियल और टीचिंग लर्निंग मटेरियल, चाहे टीएलएम बोलिए चाहे एलटीएम बोलिए, राइट, ऑल द इक्विपमेंट्स, द रिसोर्सेज, दे विल नॉट बी प्रॉपर्ली अवेलेबल. सो एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट हो ही नहीं सकती. And second is infrastructure and the resource constraints. Inadequate, जब वो फाइनेंस प्रॉपर नहीं है तो इंफ्रास्ट्रक्चर ही प्रॉपर नहीं है, classrooms are not sufficient, library is not having sufficient, and the new versions of the books, laboratories are not up to date, and technology is not there, so that can impede effective policy implementation. So limited access to resources such as textbooks, teaching aid, technology tools can also hinder the quality of education and would create a problem in implementation of education policy. Now, टीचर्स कम है और उसके ऊपर क्या है कि टीचर्स की क्वालिटी ऐसी है कि उनको ट्रेनिंग नहीं प्रॉपर मिल पाती. दे आर टीचिंग थ्रू द ओल्ड ऑब्सोलीट मेथड्स, राइट. दे आर जस्ट रिगर्जिटेटिंग their learning in the classes. So the availability of well trained and qualified teachers is crucial. So challenges क्या है? शॉर्टेज ऑफ टीचर्स है, एंड टीचर्स अगर हैं तो वो ट्रेंड नहीं है. सो उनके मोटिवेशन लेवल लो है. इनएडिक्वेट प्रोफेशनल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, सबको नहीं मिल पाती हैं अपॉर्चुनिटीज. बहुत बार क्या होता है कि बार बार उन्हीं टीचर्स को ही अपॉर्चुनिटी मिलता है आगे बढ़ने का, एंड एवरीबडी इज नॉट गेटिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू कम फॉरवर्ड. एंड गवर्नेंस एंड अकाउंटेबिलिटी, दैट इज अनदर प्रॉब्लम. वीक गवर्नेंस है. अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म जो है वो ऐसा है कि दैट कैन हिंडर द पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन. रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही क्लियर नहीं है जब, एंड आई मीन जो हमारा KRA होता है, की रिस्पॉन्सिबल एरियाज, वो ही प्रॉपरली डिफाइन नहीं है. मॉनिटरिंग इनइफेक्टिव है. इवेल्युएशन सिस्टम पुअर है. लिमिटिंग मैकेनिज्म है और ट्रांसपेरेंसी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है. दिस इज हाउ the education policy is not being implemented properly. अगर हम बात करते हैं सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी की, एजुकेशनल इनइक्वालिटीज एंड सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज पोज चैलेंजेस टू पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन. जो डिसएडवांटेज कम्युनिटीज हैं, अंडर प्रिविलेज या मार्जिनलाइज कम्युनिटीज हैं, दे में फेस बैरियर्स इन एक्सेसिंग क्वालिटी एजुकेशन. क्यों? क्योंकि पॉवर्टी है, डिस्क्रिमिनेशन है, इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर इन रूरल एरियाज है, उनके लिए लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज है. तो अगर लिमिटेड अपॉर्चुनिटी है, सबको बराबर का हक नहीं मिल रहा, बराबर की अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही आगे बढ़ने के लिए, डिस्पैरिटीज हैं, तो पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन कहाँ से होगा? नाउ, कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, यू नो इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री. हर
कहते हैं ना कि एक मील के ऊपर भाषा बदल जाती है, उसका डायलेक्ट बदल जाता है। तो बहुत ही डाइवर्स हमारा कंट्री है, मल्टीलिंगुअल, मल्टीकल्चरल सोसाइटीज़ हैं। सो उसमें इंक्लूसिविटी को इंश्योर करना, लैंग्वेज बैरियर्स को एड्रेस करना, करिकुलम को सेंटर लेवल पर जो डिज़ाइन हुआ है, उसको बिल्कुल एज़ इट इज़ स्टेट लेवल पर इम्प्लीमेंट करना, रीजनल लेवल पर इम्प्लीमेंट करना, उनको सोशियो इकोनॉमिक, सोशो कल्चरल उनके जो बैकग्राउंड्स है उसको देखते हुए उसमें इम्प्लीमेंटेशन करते हुए उसको करवाना और चैलेंजेस से भरा हुआ है, राइट? तो इसके कारण ऑब्वियसली एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट करने में दिक्कत होती है। करिकुलम रेलेवेंस एंड अलाइनमेंट की अगर बात करें तो डेवलपिंग अ रेलेवेंट एंड रिस्पॉन्सिव करिकुलम दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स एंड अलाइंस विद चेंजिंग सोसाइटल डिमांड्स इज अ सिग्निफिकेंट चैलेंज। करिकुलम को अप टू डेट रखना, सोसाइटी की नीड्स के अकॉर्डिंगली बनाना, पहले बनाया और एजुकेशन पॉलिसी बनाया, करिकुलम उसके रिलेटेड बनाया, फिर सोसाइटी की नीड्स चेंज हो रही हैं, राइट, विद द न्यू नॉलेज, राइट? तो फिर उसके अकॉर्डिंगली फिर नया फिर से चेंज करना, दैट इज ऑन गोइंग टास्क। तो फ्लेक्सिबल है, कोई रिजिड नहीं है कि एक बार बना दिया तो फिर वही वाला इम्प्लीमेंट होता रहता है, तो वो कई बार चीजें ऑब्सोलीट हो जाती हैं और नहीं, अब हम ऑब्सोलीट चीजों को फॉलो करते रहते हैं। तो ensuring the curriculum content is up to date, incorporates practical skills, prepares students for the workforce is crucial for effective policy implementation। पर ये बहुत ही challenging है, it's not an easy task, right? So monitoring and evaluation, adequate monitoring and evaluation systems, they are essential to assess the progress and impact of education policy। पॉलिसी को बना दिया और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कह दिया गया, राइट? तो उसको मॉनिटर नहीं किया, उसको इवेल्युएट नहीं किया, प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं है, मैन फोर्स नहीं है, तो जब इवेल्युएट नहीं करेंगे, उसको मॉनिटर नहीं करेंगे, तो पता कैसे चलेगा कि पॉलिसी इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट हो रही है कि नहीं, पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने का फायदा भी है या नहीं। सो इनसफिशिएंट मैकेनिज्म फॉर डेटा कलेक्शन, एनालिसिस, फीडबैक कैन impede the evaluation of policy effectiveness, एंड ऑब्वियसली दिस हिंडर्स द नेसेसरी एडजस्टमेंट्स फॉर इम्प्रूवमेंट। तो वो पॉलिसी इंप्लीमेंट हो ही नहीं पाती है। स्टेक होल्डर एंगेजमेंट की अगर हम बात करते हैं, उनका पार्टिसिपेशन इन्वॉल्विंग रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स कौन है? पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, लोकल कम्युनिटी है। इन पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन प्रोसेस उनका उसमें पार्ट लेना इज वेरी वेरी क्रूशियल। हाउएवर हमारा मैकेनिज्म ऐसा है कि जो स्टेक होल्डर हैं वो एंगेज हो नहीं पाते हैं, उसमें उनको इतनी अपॉर्चुनिटीज मिलती नहीं है। तो दैट इंश्योर्स सस्टेनेबिलिटी ऑफ द एजुकेशनल पॉलिसीज। नाउ if I go ahead with political instability and changing priorities, political instability, पॉलिटिक्स क्या है हमारा? चेंज होता रहता है, स्टेबल है ही नहीं है। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड फ्रीक्वेंट चेंजेस इन गवर्नमेंट प्रायोरिटीज, तो हर जब नई सरकार आती है उसकी प्रायोरिटीज अलग होती हैं। एक पॉलिसी बनाई गई, दूसरी सरकार आई, पॉलिटिकली वी आर इनस्टेबल, तो उनकी प्रायोरिटीज बदल गई, उनकी एजुकेशन की पॉलिसीज अलग है, तो पॉलिसी स्टेबल कैसे रहेंगी अगर वो बार बार बदलती रहेंगी? तो जो शिफ्ट हो जाते हैं पॉलिटिकल एजेंडास एंड लिमिटेड पॉलिसी continuity can impede the effective implementation and the long-term impact of education policies. So it is important to address the challenges through effective planning, adequate resource allocation, capacity building, stakeholder engagement, and continuous monitoring and evaluation। तो जो आपने पॉइंट्स 10 लिखे हैं उनको बताइए कि इनको अच्छे से ध्यान में रखेंगे तो हम उसको पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो ये हमारे बैरियर्स हैं। तो यू टॉक अबाउट दीज चैलेंजेस, शॉर्ट नोट में प्रॉब्ली ये क्वेश्चन आ सकता है, तो आप 10 पॉइंट अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, राइट? ऑल द बेस्ट, एंड विल शेयर मोर वीडियोस सून। स्टे ट्यून्ड टू मेंटरिंग द मेंटर।